Okay, what is the order in which we should attempt our taxation paper number 3 tomorrow of the Inter-C exams? Now understand, my dear friends, this if you basically try this order, there is a very good chance that you will be able to attempt the 100 marks of taxation paper if you know every part of it. Now listen very clearly, right? 145 को आपको पेपर दे दिया होगा. So as soon as at 145 you have the subjective paper, instead of just trying to glance over what kind of questions are given, from which chapter they are given, do you know or you do not know, rather than that, make it a very mission based objective in those 15 minutes, where you directly go to the indirect tax section, and once you have gone to that indirect tax section, right, hop on to either question number 6 or 5, whichever you like. I think if you start with 6 it's great, because generally वो exemption, ITC या registration के लिए ही वो question पूछा जाता है और generally वो easier होता है. तो let's say you go ahead with question number 6. Now what happens is, obviously looking at the situation around and also with the how strict or lenient your invigilator is, start solving those questions, right? तो उसमें 3-4 instances दिए होंगे. Let's say for example अगर place of supply का है, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो जस्ट राइट डाउन या टिक मार्क कर दो जगह को कि भैया आज वो क्वेश्चन के अंदर दिल्ली है, बॉम्बे है, तो आपको पता है कि भाई बॉम्बे प्लेस ऑफ सप्लाई, जस्ट टिक मार्क बॉम्बे. इफ़ यू आर आस्क्ड कि भैया एग्जाम है कि टैक्सेबल है, तो राइट डाउन के ET ऐसा करके लिख दो, या अपने माइंड में क्या है रजिस्टर कर दो, उसे सॉल्व कर दो. क्या होता है कि वो 15 मिनट में आपने 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना अच्छे से, फिर क्या होगा, एट 2 PM व्हेन द supplement comes, you can just start writing, and you won't believe that in 10 to 15 minutes you would have actually solved question number 6, question number 5, question number 7, whichever you have solved in those 15 minutes. That will drastically increase your speed and build up your confidence, my dear friends, right? So my first okay preference is that you attempt the subjective part of IDT, where ideally your chronological order should be question 6, okay, question number 6, then 5, then 7, then 8, right? Still I will still say that, okay, fix this order also on the basis of that 15 minutes. तो 15 मिनट्स में आपने जो भी सॉल्व किया होगा, ओके, जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, वो क्या है लिखना शुरू कर दो. बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है पहले 1 घंटे में कि आपका हाथ रुके ही नहीं. यू शुड कीप राइटिंग. इससे आप बहुत सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, एंड दैट विल सेट द टोन फॉर द पेपर, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? स्टार्टिंग में ही क्या है, अगर आप लिखोगे ही नहीं तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है. इससे क्या होता है, फिर आप क्या है MCQ पे जाओगे, उसमें भी कुछ नहीं है तो और डाउन हो जाएगा. तो रीजंस फाइंड आउट करो पूरे 3 घंटे में कि मुझे क्या आता है और मैं क्या लिख सकता हूँ. दैट्स इट. इफ़ यू कीप फोकसिंग ऑन दैट, यू विल कीप राइटिंग द पेपर, योर कॉन्फिडेंस विल कीप गोइंग आउट, एंड दैट्स वेयर the dopamine will release in your mind, and you will be in a very positive zone. And when you are in a positive and a calm state of mind, साला जो नहीं आता है ना वो भी आना शुरू हो जाएगा. So make sure that you are in this state, and to bring you to this state, you have to make sure that you just focus on what you know. There will be questions where you don't know, where you have no clue कि कहाँ से आया है. Don't focus on that, right? Just focus on what you know. Also remember, right, there will be a point in time where you know the question, but there will be some adjustment which you don't know. Now don't waste time on that. If you have attempted that question, accept that adjustment, do everything that is possible, right? And make sure that once you are done with that, you hop on to the next question. Don't waste a lot of time on thinking कि ये question को कैसे क्रैक करूँ. अगर पहली दफ़े में वो क्रैक नहीं हो रहा है, जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट. क्योंकि सबसे बड़ा रिग्रेट एग्जाम में ये होता है कि मुझे अगर कुछ आता था पर मैंने उसको लिखा नहीं, और मैंने टाइम उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर दिया है जो मुझे नहीं आता था और मैं कोशिश कर रहा था उसे रिकॉल करने. कमेंट सेक्शन में लिखो येस सर इफ़ यू रियली अग्री टू दिस, कि येस सर ये गलती हुई है हमसे, राइट? एंड आई डोंट वांट यू टू डू दिस मिस्टेक फॉर वन लास्ट टाइम. प्लीज़ मेक श्योर कि ये अवॉइड करना. इसीलिए जो आता है वही लिखना, जो नहीं आता है वो छोड़ देना उसमें, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5 A और B है, क्वेश्चन नंबर 5 तो जाने दो, क्वेश्चन नंबर 6 में A और B है, तो A आता है B नहीं आता, तो फिर B का क्या 2 पेज छोड़ दो अपने अंदाजे के हिसाब से और डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट?
चलेगा भाई, सप्लीमेंट थोड़ा वेस्ट करेंगे, 2-4 झाड़ कट जाएंगे और उससे पेपर जो बना था वो वेस्ट हो जाएगा, चलेगा भाई। अपना करियर यहाँ पे क्या है, सेटबैक पे हो रहा है अगर हम लोग ने ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाया तो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले प्लीज़ क्या है, आप कृपया करके सब्जेक्टिव करना। फिर जैसे ही वो हो जाता है, ओके, टारगेट ये रखना कि 1 घंटे में हो जाए वो, ओके, 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट मैक्स। उसके बाद डायरेक्टली हॉप ऑन टू माय डियर फ्रेंड्स IDT MCQs, राइट। IDT MCQs पे चले जाना आप और वहाँ पे 15 मार्क कैप्चर करने की पूरी कोशिश करना। अब वहाँ पे भी अप्रोच वही रहेगा, MCQ फटाक से क्या रजिस्टर होता है, ऑप्शन समझ में आता है, टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो। जो नहीं आता है उसको बस मार्क कर दो और क्या है बाद में करना भाई, राइट। ज़्यादा मत सोचो उस पर, ओके। और ये कोशिश यही करना 30 मिनट्स में हो जाए। तो आइडियली 1 आवर 30 मिनट्स या 1 आवर 45 मिनट्स मैक्स IDT को देना। फिर देखो MCQ आप ऑलरेडी कर रहे हो तो अभी देर इज़ अ गुड चांस कि आप DT के भी MCQs निपटा देते हो तो अच्छा रहेगा। वरना क्या होता है, कई बार हम लोग भूल ही जाते हैं कि MCQs का कोई सेक्शन होता है। तो मेरा यही क्या एडवाइस है कि फिर DT के MCQs कर दो और अकॉर्डिंगली वहाँ पे जितने मार्क्स स्कोर सकते हैं कर लो, राइट। बिकॉज अंडरस्टैंड दैट इन 2 आवर्स तो ऑब्जेक्टिव इज क्या, आप एटलीस्ट 65 मार्क्स क्या है कवर कर दे, ओके। सिंपल सी बात है। 35 अपना IDT का, 15 अपना क्या है IDT MCQs का और 15 DT के MCQs का। दैट्स गुड 65 मार्क्स। क्योंकि फिर क्या है, ओके, 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर जो बचा है, ठीक है, 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स जो बच जाता है वो आपका, ओके, DT का सब्जेक्टिव में आपको टाइम लगाना है फ्रेंड्स। वो आपके DT के सब्जेक्टिव Q&A में आपको लगा देना। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि फिर वहाँ से आपको क्या है, याद रखो, आपको 35 मार्क्स में से क्या है मैक्सिमम आपको वहाँ से लेके आना है अराउंड 20, राइट। क्योंकि 20 भी आ गया तो ऊपर तो ऑलरेडी आपने क्या 65 का लिखा है भाई, 20 और अटेम्प्ट कर दिया तो आपने 85-90 का आराम से अटेम्प्ट कर दिया। अगर आप 20-25 मार्क का भी अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास 1 घंटा विच इज़ मोर देन एनफ टाइम, ठीक है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर जाओगे तो मुझे नहीं लगता कभी भी पैनिक होगा। आराम से आप 100% अटेम्प्ट भी कर पाओगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू टेक ऑन एंड आई वांटेड टू शेयर। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज़ द पेपर टू बी रिटन, सर आंसर्स कैसे लिखने हैं, राइट, हाउ टू राइट द आंसर्स, if you really want to know about this, then please type in the comment section, okay, HWA। ये अगर आप लिखते तो मैं एक और वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों कि हाउ टू राइट द आंसर्स। एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों क्या है, उस वीडियो में 3 से 4 मिनट का होगा, 5 मिनट का मैक्स वीडियो होगा, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा आपको कि रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट ऑफ टैक्स है, ITC है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसमें कैसे रीजंस लिखे जाते हैं, क्या डायरेक्ट यूज़ होगा नहीं होगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर सेक्शन कोड करना है नहीं करना है, वो सब क्लैरिफिकेशन में दूंगा। बट आपको नीचे फटाफट से क्या है एक बार बता देना है मुझे कि आपको ऐसा टाइप का वीडियो चाहिए कि नहीं। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, आई विल एंड द डिस्कशन हियर।